Assalamualaikum students. Today's topic is data versus information or how data become information. In the introduction class, I told you that data and information are at the surface level interchangeable words, but in depth they are entirely different from one another. So now today you will come to know what is data, what is information. Now data itself is a plural word. Its singular word is datum, which is driven from the Greek word datum. Okay, so datum is singular, data itself is a plural word. Now say we are writing 58, 73, 84. Now these numbers show nothing. What are these? Are these rupees? Are these the marks? Or anything? We cannot conceive anything from these numbers. So these numbers at present are meaningless. So data itself is meaningless. Data itself is meaningless. So by combining this or anything else, plurally it will become data, but individually it, you can say, is your data. So this is the basic concept. Now at present this data itself is meaningless. To add the meaning, what we are doing, say you are saying English is equal to 58, maths say 73, and your accounting say 84. As soon as you have provided some heading to your data, in other words, some identification to your data, now it has become meaningful because everyone now can understand English 58, maths 73, accounting 84. What these numbers are showing to you means these are the marks. So the way of identifying this one, this is what actually we have done. So in somehow you can say, somehow, not I'm saying perfectly, but somehow you have provided some meaning to your data that has become your information. But we are coming again into the depth. Data is nothing but unorganized facts and figures, just like the raw material to be provided. किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज आपको बनाना है, फिनिश गुड. So what the raw material is required? Raw material is basically your data. That raw material undergoes some process. किसी process के तहत उसको गुजारना पड़ेगा. And then at the end we are having the finished good. So raw material is your data, your finished good is your information. So we conclude this one, okay, what happens? Everything in the universe works under this process. Input, then process, and then output. So this is what is basically your flow. This you can say is your data. This is your information. So data undergoes some process and then it becomes your information. So this is what is the difference between data and information. What is the definition of information? As I told you, unorganized or unprocessed data is called unorganized or unprocessed is called your data. Whereas once you have processed the data, data के ऊपर आपने कोई process किया, कोई काम किया, that will become your information. Over here this is process. So hope
कि this concept of data and information is clear. I'm not here to explain you कि what are the kinds of data, क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर या रिसर्च मेथड्स या कोई भी और सब्जेक्ट होगा उसके अंदर पूरी की पूरी एक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा कलेक्शन मेथड्स. आई एम जस्ट हेयर टू एक्सप्लेन कि डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बनती है. सो होप कि स्टैटिस्टिक्स में आपने डेटा के टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा या डेटा कलेक्शन मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे. अगर ना भी पढ़े होंगे तो आगे चलकर आप लोगों को ये टॉपिक वहां पर मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन. नाउ आवर टॉपिक इज कि डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बनता है. सो आई एम जस्ट रिमूविंग रेजिंग माय बोर्ड एंड आई एम राइटिंग. अब क्लियर होना चाहिए आपको कि डेटा एक एंड पर पड़ा हुआ है और इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पर. तो डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बनता है, दैट मीन्स वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन टू द प्रोसेस, कि हमें प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि ये प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस in the process so our data become information. So I'm writing those steps or operations, you can say. Process, I'm just putting the heading process. Okay, under the process what happens, number one is you are collecting data. Number two, classifying data. Number three, sorting data. Number fourth, calculating data. Number fifth, summarizing data. Number sixth, storing or saving data. Number seventh, retrieving data. Number eighth is your copying data. Number ninth, communicating data. And number 10th is your reporting data. These are the 10 operations, you can say, or 10 steps through which our data can be converted into information. Not necessarily that every time or each time you have to apply all these 10 steps. Not necessary. It varies from organization to organization, from data to information, that what sort of information we want to have this one. So these are the 10, may be applied all or may be applied few of these steps. अगर ये 10 के 10 भी अप्लाई होते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस एज इट इज होनी चाहिए. नो, नॉट नेसेसरी. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड फास्ट सिर्फ और सिर्फ आपका यह है कि ये पहला स्टेप किसी भी सूरत में अनचेंज होगा. फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेन्स योर अनचेंज. व्हाई? बिकॉज जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप लोग इंफॉर्मेशन नहीं ले सकोगे. जब तक आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है तो आप प्रोसेस क्या करोगे. सो फर्स्ट स्टेप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स अनचेंज. बाकी जो 9 स्टेप्स हैं उनमें से कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं हम. वेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो. नो मैटर एट ऑल. So normally these are the 10 steps. So I'll just carry on one by one.
सो आई होप कि आप लोगों ने ये 10 के 10 नोट कर लिए होंगे. इफ नॉट, आई एम रिपीटिंग. नंबर 1, कलेक्टिंग डेटा. नंबर 2, क्लासिफाइंग डेटा. नंबर 3, storing data, sorting data. Number 4, calculating data. Number 5, summarizing data. Number 6, storing या saving the data. Number 7, retrieving data. Number 8, copying data. Copying को आप backup भी बोल सकते हो. So backing up data or copying data, it's the same thing. Number 9, communicating data. And number 10th is your reporting data. So now इट्स टर्न टू गो बाय वन. लेकिन मैं पहले स्टेप्स को इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के हाउ टू कलेक्ट डेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेटा. दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस ओवर हियर. दिस इज ये आपका बाकी सब्जेक्ट के अंदर कवर हो जाएगा और आप लोग पढ़ोगे, तो इसलिए रिपीटेशन मैं नहीं करूंगा. दिस इज सपोज टू बी इन योर अदर सब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा. किस मीन से डेटा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एक अलग ही इशू है. लेकिन डेटा कलेक्शन आपका पहला मरहला है. जब तक आपका डेटा नहीं होगा आपके पास, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट स्टेप इज एज इट इज. नाउ आई एम गोइंग रेजिंग द बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग द ऑनवर्ड्स प्रोसेसेस. Sorry. Now number 2 is classifying data. If you go through to the word meaning of classification, means separation, classify करना, दर्जेबंदी करना. What we are doing actually, we are separating one data from another on the basis of similarities in characteristics और विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. यानी एक डेटा को दूसरी डेटा से हम सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लासिफाई करते हैं, दर्जाबंदी कर रहे हैं कि हम अपनी डेटा को मेल फीमेल में क्लासिफाई कर रहे हैं कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं. डेटा हमारे पास कंप्लीट है. नाउ हम उनकी दर्जाबंदी कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं मेल एंड फीमेल के अंदर. या आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है, या अब आप पढ़ रहे हो तो कौन किस क्लास के अंदर है. क्लास वाइज हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. डेटा वही है, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो. कोई पार्ट 1 के अंदर है, कोई फाइनल के अंदर है, कोई प्रीवियस के अंदर है. सो व्हाट आर दिस इज यू हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू योर क्लास. आपकी सिमिलरिटी क्या है कि पार्ट 1 में सबके सब पार्ट 1 के स्टूडेंट्स होंगे, फाइनल में सबके सब फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे. यानी ये उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर क्लासिफाइंग द डेटा. ओके, सो डेटा को क्लासिफाई किया. क्यों करते हैं? व्हाई वी आर बेसिकली क्लासिफाइंग द डेटा. द बेसिक पर्पस मोटिव टू क्लासिफाई द डेटा इज टू आइडेंटिफाई द डेटा. हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेटा किस क्लास से बिलोंग करती है. देखें, इन लोअर क्लासेस, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, इफ यू गो, बायोलॉजी के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन के रेप्टाइल, मैमल्स, एम्फीबियंस, ये क्या थे? ये डिफरेंट क्लासेस थे. ये इनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज या एनिमल्स, बर्ड्स, किसी को भी आपने प्लेस कर दिया था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. सो दिस इज यू हैव डन. इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर इफ यू गो थ्रू टू द पीरियोडिक टेबल, दैट इज आल्सो क्लासिफाइड, कि आपने उनको अलग अलग कर दिया हुआ है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर. सो क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, एक क्लास के अंदर डिवाइड करना
on the basis of some common characteristic. जब तक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी तो आप उनको एक क्लास के अंदर नहीं रख सकते. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स. के यू आर राइटिंग 033303450300003 0321 and 0303. Suppose these numbers. Nowadays everybody has the mobile. आप इन कोड्स के जरिए देखें 0333 you can identify the network. नॉर्मली आप नेटवर्क आइडेंटिफाई करते हो कि किस कंपनी का ये नंबर है. सो 0333 यू फोन 0345 आपका टेलेनॉर है, 0300 आपका जैस का है, सो ऑन 0321 और 0303. इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. यानी हम डेटा को क्लासिफाई तो कर रहे हैं, अलग तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके. इसी तरह से देखें कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं ADA 418, AHP 695, ATC 229, like this one. देखें अगेन वी आर आइडेंटिफाइंग. अब जो जिनको गाड़ियों का शौक है या जो थोड़ा बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व है, सो दीज कैरेक्टर्स जो ADA, AHP, ATC, नॉर्मली इससे आप क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि गाड़ी किस मॉडल की है या किस ईयर में रजिस्टर्ड की हुई है आपकी. सो वी आर आइडेंटिफाइंग. ये एक आइडेंटिफिकेशन इस कोड से मिल जाती है. सिमिलरली ये नंबर्स हैं उनके कि ADA से दूसरी गाड़ी आपके पास रजिस्टर नहीं होगी, 418 से किसी और को ये नंबर नहीं मिला होगा ADA सीरीज के साथ. सो दिस इज व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग अगेन. इसी तरह से अगर हम देखें किसी और चीज को 051 042 021 022, अगेन these are what? These are your टेलीफोन सिटी कोड्स. 051 यानी इस्लामाबाद का नंबर, 042 मींस ये लाहौर का नंबर है, 021 कराची, 022 हैदराबाद. सो अगेन वी आर आइडेंटिफाइंग. एक कोड दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, वो कोड के जरिए हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं किसी भी डेटा को? आइडेंटिफिकेशन होती है नॉर्मली कोडिंग के जरिए, यानी हम डेटा को कोड कर रहे हैं, कोई ना कोई उसे कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, कोड जनरेट कर रहे हैं, वो उसको दे रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है. तो ये कोड बेसिकली अगेन ये कोड कैसे होता है? कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. कोड जो है हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है. एक होता है आपका जनरल नेम प्लस पर्टिकुलर नेम. दीज आर द वेज कि जिसके जरिए आप डेटा को कोड करते हैं. जनरल नेम प्लस पर्टिकुलर नेम इज आवर ओन नेम्स, हमारे अपने नाम के. वी आर सेइंग कि बाबा अली गुल मैथलो, सपोज नाउ मैथलो इज जनरल नेम. मैथलो जनरल नेम क्यों है? वो कास्ट है, वो पूरी फैमिली यूज कर रही है उसको. सो दिस विल बी योर जनरल नेम, वेयर इज अली गुल इज योर पर्टिकुलर नेम. तो हमारे अपने नाम क्यों है? वो भी अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए है. तो वो इसी तरह से हम जब क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो डेटा को क्लासिफाई करने के लिए भी हमें कोड करना पड़ता है, और वो कोड होता है बेसिकली डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो यहां भी अगर आप देखें कि ये 0333 आगे जो 7 डिजिट्स होंगी वो कुछ और होंगी, तो ये कोड है आपका, ये जनरल कोड हो जाएगा, और ये जो नंबर यहां पर है ये आपका पर्टिकुलर नंबर हो जाएगा. इसी तरह से यहां देखें ADA जनरल नेम है आपका, ये 418 आपका पर्टिकुलर है.
सिमिलरली यहां पर भी ये सब चीजें देख लें, कोई भी, तो हम कोड बेसिकली जनरेट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, जनरल नेम प्लस पर्टिकुलर नेम, और ये हम करते हैं कि डेटा को आइडेंटिफाई करें। तो हम डिफरेंट दर्जों में, डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए, और आइडेंटिफाई हम करते हैं क्योंकि हम डेटा को कोड दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और क्लासिफाइंग द डेटा। होप इट शुड बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नॉट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि क्या है ये चीजें। क्लासिफिकेशन, डिफरेंट ग्रुप में डेटा को डिवाइड करना है, उन ग्रुप्स में उनको डेटा को रखना है जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डेटा को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? हम डेटा को कोड दे रहे हैं। कोड दो चीजों से मिलकर बनता है आपका, एक जनरल नेम, दूसरा पर्टिकुलर नेम। सो कोई भी चीज आप उठा लें जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका कोई कोड होगा जिसके जरिए आप डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और क्लासिफाइंग द डेटा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट ऑपरेशन और प्रोसेस के अंदर जो थर्ड चीज है आपकी, थर्ड वन, सॉर्टिंग द डेटा। सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट करना। नाउ व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग इज बेसिकली टू कीप द डेटा इन अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस। किसी भी डेटा को किसी सीक्वेंस के ऑर्डर के अंदर रखा जाए तो उसे हम कहते हैं ये सॉर्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अपने रोल नंबर्स क्या है, किसी ऑर्डर के अंदर हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, तो ये ऑर्डर है आपका। या आपके नेम्स को लेकर वी आर कीपिंग देम इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, दिस इज अगेन सॉर्टिंग। ओके, नाउ व्हाई वी आर सॉर्टिंग? सॉर्टिंग हम करते क्यों हैं? जब क्लासिफाई कर लिया, डेटा को अलग कर लिया, तो अब हम सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं? बेसिकली सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस के, जैसे मैंने बताया कि to keep the data in a desired sequence. It may be ascending order, ASCEND, ascending order, or descending order. This is A to Z and this is Z to A. या ऐसे आप कह सकते हो lower to higher and higher to lower. Ascending means के स्मॉलर वैल्यू पहले और लार्जर वैल्यू बाद में। डिसेंडिंग के हायर वैल्यू पहले, लार्जर वैल्यू लोअर वैल्यू बाद में आपकी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहे हैं या आपके रोल नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो मोस्टली होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, क्योंकि जो कम नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा, या ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आएंगे और जेड पर खत्म होने वाले, जेड से स्टार्ट होने वाले नेम्स आखिर में आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरह चाहिए, कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल कि अगर हमें लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से चाहिए कि कौन सीनियर है, या एज के हिसाब से चाहिए कि कौन सबसे बड़ा है, तो वो डेटा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जो है वो करेंगे कि हमें हायर वैल्यू पहले चाहिए और लोअर वैल्यू बाद में चाहिए। तो ये दिस इज कॉल्ड योर डिसेंडिंग। असेंडिंग आपका लोअर टू हायर और डिसेंडिंग हायर टू लोअर ऑर्डर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अगेन के क्यों सॉर्टिंग करते हैं जब हमारे पास हमने डेटा को क्लासिफाई कर ही लिया है? तो द रीजन इज कि हम टाइम बचाने के लिए। अब टाइम कैसे बचाते हैं? वी हैव टू सेव द टाइम बाय सर्चिंग, कि हम किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी इफ द डेटा इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर।
The best example of your sorted data is your dictionary. डिक्शनरी के अंदर से फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन वर्ड्स हैं. अगर ये ऑर्डर में नहीं होती, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होती, तो इट वुड हैव बीन, इफ नॉट इम्पॉसिबल, रादर मोर एंड मोर डिफिकल्ट. ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल अगर हम ना भी कहें तो भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए कि कोई एक वर्ड हम उसमें से ढूंढ पाते, या उसके लिए हमारा टाइम कितना जाया होता. सो इस वक्त क्या है कि डिक्शनरी आपकी एक ऑर्डर के अंदर है, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग एंड सर्चिंग दैट वर्ड. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है. दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर सॉर्टिंग. Similarly, nowadays you people, all people have the mobiles in your hands. You are storing the contacts. Contacts क्या है? आपके नेम के हिसाब से सेव होते हैं. So जो A से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके पहले पड़े हुए होंगे, और जो Z से होंगे वो लाजमी आखिर तक होंगे. सो दिस इज व्हाट सॉर्टेड. सॉर्टिंग का क्या है कि मैंने आपको बताया कि इट बेसिकली saves our time when we have to search or locate any particular data. So this is the job of your sorting. लेकिन अब sorting के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि कभी आप इसको, suppose you have name, age, grade, suppose these are the 3 fields. अब कभी आप नेम के थ्रू डेटा को सॉर्ट करते हैं, कभी आप एज के थ्रू डेटा को सॉर्ट करते हैं, कभी आप ग्रेड के थ्रू आप सर्च करते हैं. इवन आई एम राइटिंग हियर रोल नंबर, रोल नंबर, ताकि सब एग्जांपल्स आ जाएं. रोल नंबर, ठीक, कभी रोल नंबर के ऊपर, तो इनको हम कहते हैं क्या? कॉलम हेडिंग्स. यानी whenever you want to sort the data must be sorted on some column heading, कि वो रोल नंबर के हिसाब से है, या नेम के हिसाब से है, या ग्रेड के हिसाब से है. सो ये रोल नंबर, ये नेम. अब इनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक और प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन नहीं, एक इश्यू है. रोल नंबर क्या है कि जो रोल नंबर एक स्टूडेंट को मिल गया वो किसी और को नहीं मिलेगा. दैट मीन्स वो उसका सोली एक बंदे का एक आइडेंटिफिकेशन है, एक स्टूडेंट की एक आइडेंटिफिकेशन है. ठीक, इसी तरह से देखें, बैंक अकाउंट आपका है. बैंक अकाउंट अगर किसी को एक अकाउंट नंबर है तो वो दूसरे किसी को नहीं मिलेगा. या इवन योर CNICs, किसी एक के पास अगर CNIC है वो नंबर किसी दूसरे के पास नहीं होगा. दैट मीन्स कि ये जो रोल नंबर या इस तरह की जो डेटा है, नॉर्मली हम इसे कहते हैं यूनिक डेटा. यूनिक डेटा यानी वो किसी और के पास नहीं होगी, वो उसको किसी एक ही के पास होगी, वो नॉन शेयरिंग होगी, कोई और उसका शेयर होल्डर नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड यूनिक डेटा. तो जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं तो अगर हमने किसी यूनिक कॉलम के ऊपर सॉर्ट किया है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास कभी भी दो चीजें एक जैसी, दो नंबर एक जैसे होंगे ही नहीं, तो वो आराम से हो जाएगी किसी भी हिसाब से अगर हम कर लें तो. ठीक, इश्यू होता है कि ये जो नेम है, एज है, ग्रेड है, सपोज के नेम मल्टीपल हो सकते हैं. एक ही क्लास के अंदर आप लोग देख लें, अपने ही क्लास के अंदर अगर 60-70 की स्ट्रेंथ है या 100-150 की स्टूडेंट्स है तो 3 से 4 नाम आपको कॉमन मिल जाते हैं. एज ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स की वही होगी. अगर हम राउंड ऑफ करके एक ईयर्स में ले आते हैं तो 90% एंड अबव स्टूडेंट्स की एज वही होगी. ग्रेड अगर हम कहें कि हमारे पास ग्रेडिंग A-B-C-D तक है तो जरूरी नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट सिर्फ A ग्रेड उठाए या B ग्रेड उठाए या C या D, उसमें भी मल्टीपल हो सकते हैं. अब इन तीनों को अगर हम कहें, ये तीनों चीजें कॉमन शेयरिंग है, यानी एक के पास है तो किसी दूसरे के पास भी ये चीज हो सकती है. इस किस्म के डेटा को हम कहते हैं नॉन यूनिक.
इस किस्म की डेटा को हम कहते हैं नॉन यूनिक। और इश्यू होता है सॉर्टिंग में यहां पर कि इस किस्म की डेटा को हम कैसे सॉर्ट करें, कौन पहले आए कौन बाद में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल आप ही के इसमें से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यू पीपल सॉर्ट एडमिशन, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब आपका एक फार्मूला बना हुआ है सिलेक्शन के लिए कि टेस्ट, एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं। सपोज कि आप लोगों ने इनकी कैलकुलेट की और सीपीएन बना दी, जो आप बनाते हो आपको पता है, ठीक। अब ये सीपीएन के हिसाब से आप लोगों की एडमिशन हो रही है कि जो हायर सीपीएन एक्वायर करता है उसी हिसाब से। तो अब यहां देखें कि टेस्ट में स्कोर आप लोगों का सपोज आउट ऑफ 400 250 किसी ने सिक्योर किया। अब ये 250 में भी मोर देन 1000 स्टूडेंट का स्कोर हो। अब सीटें आपके पास 100 हैं तो 1000 को तो आप नहीं देंगे। अब क्या है कि अगर आपके टेस्ट का स्कोर, एंट्री टेस्ट का स्कोर सबका एक है, 1000 स्टूडेंट्स का, जिसका मैंने कहा कि ग्रुप हम लेते हैं तो उसके अंदर 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनका 250 स्कोर है। तो अब इसको हम क्या है कि हम टाई ब्रेक करेंगे। जब भी यहां टाई पड़ गई, क्योंकि ये टाई है आपकी, एक से ज्यादा के पास वही वैल्यू आ रही है, तो आप टाई ब्रेक करोगे। टाई कैसे ब्रेक होगी कि फिर आप चले जाओगे इंटर के ऊपर, जिसके इंटर में ज्यादा है वो ऊपर आ जाए। अब फर्ज कर लें उस 1000 में से 200 स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपके शायद सेम हो, जिनके इंटर के अंदर भी मार्क्स इक्वली आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि अगेन टाई पड़ गया, देन अगेन आप टाई को ब्रेक करने के लिए फिर मैट्रिक की रिजल्ट को ले आते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली ब्रेकिंग द टाई। टाई को हम ब्रेक कर रहे हैं जब हमारे पास नॉन यूनिक डेटा हो। ये प्रॉब्लम तब नहीं होता जब हमारे पास यूनिक है, वो हमें पता है कि एक ही नॉन शेयरिंग है, किसी और के पास डेटा नहीं होगी। जब नॉन यूनिक है, क्योंकि वो शेयरिंग है, एक से ज्यादा के पास है, तो हम लोग वहां पर ये इश्यू आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एंट्री टेस्ट का स्कोर प्लस आपका इंटरमीडिएट का स्कोर प्लस आपका मैट्रिक का स्कोर, इसके बाद जो आप बनती है आपका जाकर सीपीएन बनती है। तो वो सीपीएन आपकी देखें फिर आती है। अगर ये भी कॉमन हो गया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चले जाते हो। ओपन मेरिट के अंदर एक अलग है, लेकिन कोटा सिस्टम के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप अलग करते हो। सो दिस इज व्हाट हाउ वी आर ब्रेकिंग द टाई। हमें टाई को कैसे ब्रेक करना होता है। सो दिस इज यू आर सॉर्टिंग द डेटा, कि हमें डेटा को सॉर्ट करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सर्चिंग में आसानी रहती है। कोई भी चीज ढूंढे तो हमारा टाइम सेव होता है। उस टाइम को सेव करने के लिए हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट करने के लिए किसी ना किसी कॉलम के ऊपर आप सॉर्ट करते हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे नेम हो, चाहे ग्रेड हो, चाहे एज हो, किसी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा किस किस्म का है। फिर ये यूनिक और नॉन यूनिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यूनिक डेटा को सॉर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि वो नॉन शेयरिंग है, किसी और के पास वो कॉमन वैल्यू नहीं होगी। नॉन यूनिक के अंदर क्या है कि कॉमन चीजें आ जाती हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ग्रेड है, एज है, नेम है, ये सब चीजें कॉमन हो सकती हैं, एक से ज्यादा को मिल सकती हैं। उस केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के थ्रू डेटा को सॉर्ट करते हैं और तब जाकर ये हमारी डेटा सॉर्ट हो जाती है। सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आज के लिए मैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है और ऑनलाइन लेक्चर के अंदर भी यह है कि लेक्चर बोर नहीं होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हो चुके हैं। होप के ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ नॉट एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इफ यू पीपल हैव, तो आप लोग मेरे MS टीम्स के ऊपर हिस्सा हैं,
वहाँ पर हम ऑनलाइन मीटिंग करके वहाँ पर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नंबर आपके पास है, ग्रुप्स बने हुए हैं, या इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. नथिंग टू वरी अबाउट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इंशाल्लाह. थैंक यू.